fatigue. Yes. Take good adjectives and make some good sentences now, please, all of you. Good sentence, ma'am. Give me sentences, please, more. He's amazingly remarkable. Their performance was amazingly remarkable. Yes. My friend is extraordinarily talented person. Very good. Yes. She is amazingly draw Yes. a picture. She is amazingly draw a Correct. picture. She amazingly drawn a picture. Amazingly drawn. Yes, sir. The man is totally involved in this matter. Yes. The man is totally involved in this matter. Very good. The man is totally involved in this matter. Next. Yes. The weather unusually changed. The weather unusually changed. Smoking is especially harmful. I'm wholly satisfied with his definition. The car was seriously damaged in the accident last night. They were awfully agree with me. I'm impatiently waiting. I'm impatiently waiting for the results. They completely disagree with my statements. They thoroughly rejected my products. They perfectly pretended to be nice. The flower decoration is beautifully arranged. Very good. Beautifully arranged. Very good. Yes. Gudu, Shivdas, make sentences. Today I am completely exhausted. Today I'm completely exhausted. Yes. The sandwich Yes. is especially very good taste. Correct. The sandwich is especially tasty. Yes. Yes. Sentences, please. The sandwich is especially tasty. This product is highly recommended. Very good. This product is highly recommended. Gudu, where are you? Yes. Sentences, please. The trekkers group is totally upset today due to heavy rain. Very good. The butterfly is rarely seen. Very good. The man is Nice. extraordinarily good. Very good. Okay, did I tell you any story about Mughal Azam movie? Yes, sir. No, sir. Yes, ma'am. बोला था मैंने. मुगले आजम की नहीं बोली है सर. Okay.
लेट मी टेल यू, आज मुझे स्टूडेंट्स जरा थोड़े से फटीक लग रहे हैं and they are not making sentences. Let me tell you one story. Pay attention. The story is about seriousness. The story is about seriousness. What do you mean by seriousness? Seriousness किसको बोलते हैं? Yes. Who can tell me what do you mean by seriousness? I'll tell you. Seriousness क्या होता है पता है आपको? आज आपको मैं स्टोरी में बोलूंगा तो आपको इस झटके में समझ में आएगा कि सीरियसनेस का एक्चुअली मतलब क्या होता है. What do you mean by seriousness actually? Seriousness is what? In 1944. Listen to me carefully. Okay? In 1944, I'm going to write down everything here on the screen. In 1944, a movie was getting shot. A movie was getting shot, sorry. And the movie was Mughal-e-Azam. Mughal-e-Azam movie was there and it was getting shot in 1944. The movie went 1944 to 1960. How many years? 16 years. The shooting was going on for 16 years. Let me tell you, my dear friends, seriousness. What exactly seriousness is and how shall we recognize it well? The story of Mughal-e-Azam was written long time back and started shooting in 1944. I hope all of you are listening me well. Yes, sir. Okay. In 1944, the shooting started and finished in 1960s, and the movie got released in 1960. Before that, Mughal-e-Azam was written many times, in long way. Apart from this one, seriousness is what? The director was there, and the director name was there, K. Asif. Mr. K. Asif was the director of the movie of Mughal-e-Azam. K. Asif director थे Mughal-e-Azam movie के. And he has been considered as the craziest director of Indian cinema. Do you know why craziest director? मुगल-ए-आजम का जो डायरेक्टर था मुगल-ए-आजम का के आसिफ, उसको अपने बॉलीवुड का सबसे क्रेजी डायरेक्टर बोला गया है. Do you know why crazy? Because he was so crazy to make the movie. He has taken the movie so seriously that he took 16 years and he put all the efforts to make the movie. And today still in 2020 we are naming that movie. और आज भी हम लोग वो नाम मूवी का नाम निकाल रहे हैं. दैट्स मुगल-ए-आजम which was made in 1960 जब अपने अब्बा भी पैदा नहीं हो गए थे. In 1960 it has been released. 1944 में स्टार्ट हुआ था. Now the great amazing facts I'm coming with. के आसिफ इतना बड़ा पागल था that he put his all money, all the resources, all the efforts just to make this money. उसने उसके घर का हर एक रुपया उसने मूवी के अंदर लगा दिया था. And he was nothing. And do you know, पान खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए भी पैसा नहीं था के आसिफ के पास में. ऐसा नंगा हो गया था वो फिल्म के अंदर. He put there everything. Why? Just to make his name, just to make the movie amazing. वो मूवी को उसने दिलो जान से बनाने के लिए, उसका मूवी का हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए उसने सब कुछ लगाया था. इसको बोलते हैं सीरियसनेस. पॉइंट नंबर 1. Do you know one more thing? मुगल-ए-आजम के अंदर जो चीजें थी, मुंबई में शूटिंग हो रहा है मुगल-ए-आजम का, मुंबई में शूटिंग चल रहा था मुगल-ए-आजम का. They got the people from Rajasthan to make weapons. वेपन्स बनाने के लिए जो वेपन्स यूज किए गए मूवी के अंदर, वो दिखने के लिए, असली दिखने के लिए ओरिजिनल वेपन्स बनाए उसने. और वो लोगों को कहां से बुलाया था उसने? राजस्थान से. He got the people from Kolhapur. For what? To make the crown of Akbar Badshah. To make the crown of the King Badshah. That what? The King Akbar. Sorry.
अकबर किंग का जो क्राउन उसने पहना हुआ है, अकबर जो किंग बताया हुआ उसके अंदर, उसने जो क्राउन पहना है वो क्राउन बनाने के लिए खास ही गॉट द पीपल फ्रॉम कोल्हापुर, ही गॉट द कॉस्ट्यूम्स फ्रॉम हैदराबाद। डू यू नो दिस वन? हैदराबाद से उसने मंगाया क्या? कॉस्ट्यूम्स। उसके अंदर जो कॉस्ट्यूम्स बनाया है, जो पहना है राजा ने, वो कॉस्ट्यूम्स पहने बनाए हुए जो है कॉस्ट्यूम्स, वो बुलाया उसने लोग हैदराबाद से। he got the people from हैदराबाद just to make costumes। उसके अलावा उसने बहुत सारी जगह से अलग अलग लोगों को बुलाया। कोल्हापुर से उसने क्राउन बनाने के लिए लोगों को बुलाया। एंड द कासल विच वॉज मेड ऑफ कंप्लीटली ग्लास, पूरे शीश का बनाया था, इट वॉज केम फ्रॉम जर्मनी, बर्लिन एंड बेल्जियम। बर्लिन एंड बेल्जियम से ग्लास मंगाया था, जो ग्लास का वो महल बनाया था उसका, अकबर बादशाह का। सी 1944 में स्टार्ट हुआ, शूटिंग 1960s में खत्म हुआ, 16 इयर्स इट टुक। एंड सी द सीरियसनेस कि उसने एक भी चीज के अंदर वो ऐसे क्यों कर रहा था। राजस्थान से लोगों को बनाया वेपन्स बनाने के लिए, कोल्हापुर से लोगों को बुलाया क्राउन बनाने के लिए, हैदराबाद से लोगों को बुलाया कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए, और गुजरात से उसने लोगों को बुलाया था फॉर द क्लोथ्स फॉर्मेशन एंड ऑल। क्लोथ्स के लिए उसने गुजरात से लोगों को बुलाया था, क्लोथ्स बनाने के लिए, क्लोथ्स उसका सेट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस। क्यों? क्योंकि वो के आसिफ नहीं चाहता था कि एक भी चीज गलत हो, एक भी चीज नकली दिखे। ग्लास का कासल बनाया एंड द पीपल गॉट फ्रॉम बेल्जियम एंड जर्मनी। जर्मनी से, बेल्जियम से उसने वहां से ग्लास मंगाया मिलियंस ऑफ रुपीज का। यही कुछ नहीं, यही कुछ नहीं, उसके पास खाने के लिए पीने के लिए पैसा नहीं रहता था, उधार पे चलाता था पूरा काम। वो उसका डायरेक्टर हो के उधार पे काम चल रहा है। क्यों? बिकॉज उसने पूरा पैसा उसके अंदर लगाया। सी द सीरियसनेस दैट ही वांटेड टू मेक द मूवी which should go for Oscar award। गई नहीं, बात एक अलग है, बट उसने उसका पूरा दिलो जान लगा दिया था उसके अंदर। इसको बोलते हैं सीरियसनेस। एक भी चीज के अंदर कंपैरिजन नहीं किया उसने, एक भी चीज के अंदर कंपैरिजन नहीं किया। सेकंड थिंग, अब अगर आप लोग ने मूवी देखा रहेगा तो उसके अंदर मधुबाला है हीरोइन। मधुबाला ने जंजीर पहना हुआ है, देखो आप लोग यूट्यूब के ऊपर आज वो मूवी। मधुबाला ने जो जंजीर पहना है ना, जंजीर, the chains which Madhubala wearing, those are the chains made by real iron। those are the chains made by real iron। रियल आयरन से बने हुए थे वो, ओरिजिनल लोखंड के थे वो, ओरिजिनल लोखंड के। हीरोइन को, इतनी भारी हीरोइन है, कोई उसको ऐसे ओरिजिनल लोखंड पिनाएगा क्या? ओ माय गॉड। क्यों मालूम है आपको? फॉर सीरियसनेस, फॉर द रियलिटी, रियलिटी के लिए, ताकि जब वो ओरिजिनल चेन पहनेगी उसको दर्द होगा सच में, उतना जब दर्द निकल के उसके चेहरे पर आएगा तो उसको वो दर्द शूट करना था, ओरिजिनल वाला। अगर नकली प्लास्टिक की चेन पहनेगी तो एक्टिंग कर रही है वो, उसमें मजा नहीं आएगा। उसको चाहिए था दिल से एक्टिंग चाहिए, ओरिजिनल वाली एक्टिंग चाहिए थी उसको। उसने उसको ओरिजिनल चेन पहनाया। जब उसको जंजीर में डालते हैं ना, कैद करके अकबर बादशाह उसको प्रिजन में डालता है, किसको? अनारकली को, मधुबाला। उसने उसको ओरिजिनल चेन पहनाया। व्हाई? जस्ट टू गेट द ओरिजिनल रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पेन ऑन द फेस ऑफ मधुबाला। दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस, द रियलिटी। सी क्यों कर रहा है वो ऐसा? इतनी भारी हीरोइन को उसने ऐसे क्यों पहनाया? हीरोइन बोलती जा नहीं करती मैं। उसने बोला अकबर बादशाह जो उसके अंदर किया है काम, उसका नाम आई थिंक संजीव कपूर के कुछ तो भी नाम है वो आदमी का, आई डोंट रिमेंबर द एक्टर नेम। उसने उसको बोला यू हैव टू गेन योर वेट, अगर नहीं बढ़ाएगा वेट यू विल लूज द रोल ऑफ मिस्टर अकबर इन द मूवी। लीड रोल था उसका, अकबर का रोल तेरे को मिलेगा ही नहीं अगर तूने वेट नहीं बढ़ाया। ही गेन द वेट अराउंड 20 kg जस्ट फॉर द मूवी। 20 kg उसने वेट गेन किया जस्ट टू लीड द रोल, लीड रोल के लिए। अगर नहीं बढ़ाया तेरे को रोल नहीं मिलेगा, डायरेक्टर ने बोला उसको। दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल दिखना चाहिए। आजकल के इसमें क्या है, तकिए विकिए लगाते, कपड़े वपड़े भरते, मोटा दिखाते, मजा नहीं आएगा। थोबड़े से भी मोटा दिखना चाहिए, पेट से भी, हाथ से भी, सब जगह से मोटा दिखना चाहिए। ही मेड इट। दिस इज कॉल्ड परफेक्शनिस्ट, दिस इज कॉल्ड रियलिटी, दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस। सी कितना सीरियसनेस था उधर। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, यही कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, उसके अंदर एक गाना है,
उसके अंदर एक गाना है जो कि तानसेन के सुर में गाया है, और वो गाना है मोहब्बत जिंदाबाद। मैं आप लोगों को क्यों बता क्रिएटेड एको, ही हैज क्रिएटेड एको। वो टाइम पर एको का मशीन नहीं था, वो टाइम पर 1940s के अंदर एको का मशीन नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था, नथिंग वाज देयर। ही मेड दैट सॉन्ग बाय 1000 सिंगर्स विथ 1000 माइक्स। 1000 माइक रखा उसने, 1000 सिंगर लोग को बिठाया और गाने के लिए लगाया। वाई? सीरियसनेस, इसको बोलते सीरियसनेस। आप लोग कितने सीरियस है अपने इंग्लिश को लेकर? आप लोग कितना सीरियस है अपने इंग्लिश को लेकर? कैन यू प्लीज टेल मी? सीरियसनेस। 1000 सिंगर्स को बैठ के गाने के लिए लगाया गाना वो। वाई? जस्ट टू क्रिएट द एको, के एको होना चाहिए। सीरियसनेस देखो उसका, वरना बोलते थे अरे चलता ना यार, जाऊ दे, काय काय करायचं आहे, नाही एको नाही झाला तर काय नाही झाला। सेकंड थिंग, उसके अंदर एक गाना है, एक और गाना है उसके अंदर, एंड द सॉन्ग इज व्हाट? प्यार किया तो डरना क्या। यस और नो? डू यू नो दिस? प्यार किया तो डरना क्या गाना, दैट सॉन्ग हैज रिटन more than 101 times. Oh my god. Mr. Naushad was the composer. Mr. Naushad जो थे वो टाइम पे कंपोजर थे, और उन्होंने क्या किया, वो गाने को रिजेक्ट किया 101 टाइम्स। वो लिख कर लेकर आता था, राइटर लिख कर लेकर आता था गाना, वो बोलते थे नहीं ये गाना नहीं चाहिए, ये गाना लिख के लेके आया, नहीं चाहिए गाना, ये गाना नहीं चाहिए। उसने बोला मेरे बाप मेरे को माफ कर, अभी कौन सा गाना लेकर आऊं। 101 टाइम्स उसने वो गाना लिखा। 102nd टाइम, 102nd टाइम, 102वें टाइम जब वो गाना लिख कर लेकर आया, तो गाना था प्यार किया तो डरना क्या। आफ्टर लिसनिंग एंड आफ्टर रीडिंग दैट सॉन्ग, नौशाद सेड यस नाउ इट इज करेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांट। वो बोला मेरे बाप इतना क्यों कर रहा है, बोला सीरियसनेस। वो गाना ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक सुनेगा, पब्लिक जिंदगी भर याद रखना चाहिए। सीरियसनेस। अरे जब के आसिफ जो डायरेक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ? सीरियसनेस माय फ्रेंड, सीरियसनेस। आप लोग कितना सीरियस है अपने इंग्लिश को लेकर? टेल मी नाउ। वन मोर थिंग, यही नहीं, उसके अंदर एक सॉन्ग है तानसेन की तरह गाया गया है, और वो सॉन्ग का नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा सॉन्ग। वो एक सॉन्ग है जो कि तानसेन के जमाने में कैसे गाना गाते थे, इधर मतलब इन्हीं जो टोन था ना, वो टोन के अंदर गाना गाते थे। सो के आसिफ आस्ट, वो के आसिफ ने क्या किया, पूछा किसको? मिस्टर नौशाद को, जो कि कंपोजर थे वो टाइम के, कि नौशाद साहब तानसेन गाना कैसे गाता है। पुराने जमाने में बहुत बड़ा गायक होता था तानसेन। बोले साहब तानसेन गाना कैसे गाता है, वैसा गाना गाने वाला आज के जमाने में कौन है? सो नौशाद साहब सेड एक आदमी है जिसका नाम है गुलाम अली खान। गुलाम अली खान जो कि गाना गाता है तानसेन के ऐसा। गुलाम अली खान, ही सेड कहाँ है वो? ही सेड गुलाम अली खान इज इन लखनऊ, वो लखनऊ के अंदर है। गुलाम अली खान लखनऊ के अंदर है। बोले मेरे को लेकर चलो। याद से सुनना, ध्यान से सुनिए। आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मी वेल। Yes, sir. गुड। Sir, सो उसने क्या किया, नौशाद ने, कंपोजर, उसने के आसिफ को लेकर गया, मिस्टर आसिफ को लेकर गया लखनऊ। किसके पास? मिस्टर गुलाम अली खान द सिंगर। नौशाद ने बोला पर वो गाना जो है वो मूवीज के लिए नहीं गाते, वो अपने शौक के लिए गाना गाते खाली। क्या बोला वो? गुलाम अली खान मूवीज के लिए गाना नहीं गाते, वो खाली अपने शौक के लिए गाना गाते, वो मूवीज के लिए नहीं गाते। बोले नहीं गाएंगे वो गाना। बोले आप लेकर तो चलो मेरे को। बोले नहीं लेकर चलो आप मेरे को। अरे मेरी जिद है, लेकर चलो, मेरी जिद है, आप लेकर चलो मुझे। ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। नौशाद ने मिस्टर के आसिफ को लेकर लखनऊ गए। किसके पास? मिस्टर गुलाम अली खान के। गुलाम अली खान के पास में लेकर गए उनको, एंड
वहां पर बोले कि नौशाद साहब, बोले आप इधर कैसे गया? बोले वो आसिफ साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सो के आसिफ सेड, आप गाना गाते हैं? उसने बोला यस मैं गाना गाता हूँ। बोले आपको हमारे एक मूवी के लिए गाना गाना है। तो गुलाम अली खान बोले आई डोंट सिंग फॉर मूवीज, मैं मूवीज के लिए नहीं गाना नहीं गाता हूँ, मैं खाली मेरे शौक के हिसाब से गाना गाता हूँ, वो भी खाली महफिल के अंदर, मूवीज के लिए मैं गाना नहीं गाता हूँ। ही सेड नहीं आपको गाना पड़ेगा। बोले गाना तो आप ही गाएंगे। सी उसका स्टाइल कैसा था, जो सामने वाला नरेट कर रहा था, मैं उसको सामने वाले को नरेट कर रहा हूँ आपके सामने, उसके स्टाइल के साथ में। जब वो टाइम पे उसने बोला, आई होप यू आर सीइंग मी इन द कैमरा, जब गुलाम अली खान ने बोला किसको, के आसिफ को, कि मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं गाना नहीं गाऊंगा, के आसिफ यूज्ड टू स्मोक अ सिगार, वो सिगार पीता था, सिगरेट। उसने सिगरेट मारा और उसने बोला गाना तो आप ही गाएंगे, गाना तो आप ही गाएंगे। गुलाम अली खान ने वो नौशाद के मुंह को देखा, बोले एड़ा है कि इधर, मैंने बोला ना मैं गाना नहीं गाता हूँ मूवीज के लिए। सो उसने बोला गाना तो आप ही गाएंगे। गुलाम अली खान बोले ओके नौशाद साहब आप जरा दो वेट करो, मैं के आसिफ को थोड़ा भूत निकाल के आता हूँ अंदर से। के आसिफ को बोला लेट्स गो कम इनसाइड, चलो अंदर जरा घर में चलते हैं। के आसिफ को लेकर अंदर गया, ही वेंट इनसाइड विद के आसिफ एंड ही सेड डू यू वांट मी टू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप मेरे से गाना गवाना चाहते हैं? वो बोला यस, गाना तो आप ही गाएंगे। सी उसका पागलपन देखो। बोले ठीक है, आई विल टेक 50,000 रुपीज टू सिंग अ सॉन्ग। व्हाट द शिट, ओ माय गॉड। वो टाइम पर गाना गाने वाले के लिए था 300 रुपीज पर मंथ। एक महीने में जितना गाना गाने का है गवा के लोस से, एक महीने तक के आदमी को 300 रुपए देने का सिंगर को, वो गाना गाता था। मतलब 10 रुपए एक दिन का, एक महीने के 300 रुपए, जितना गाना गाने को बोलेगा आप लोग दिन रात गाना गाएगा आपके लिए। वो ऐसा रेट था वो टाइम पे 1940s में। और उसने क्या बोला, आई विल चार्ज यू इन 1940s, उसने क्या बोला उसको, आई विल चार्ज 50,000 रुपीज। अगर अपन रहते तो क्या बोलते थे, ए तू तुझा बघून घे, जाऊ दे रे, अपने गाना नहीं गाने का, चलो 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 चलो, मैं खुद गाऊंगा, 50,000 में तो गाना, एक काम करो मेरे को दो, मैं गाता गाना। डी नो आसिफ ने क्या किया, मिस्टर के आसिफ, उसने कुर्ता पहनता था ना वो, उसने कुर्ते के जेब में हाथ डाला और उसने 10,000 का गड्डी निकाल के टेबल पे डाला, टेबल पे ऐसा पैसा डाला, बोला गाना तो आप ही गाएंगे। ओ माय गॉड, दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस, सीरियसनेस, कि गाना तो आप ही गाएंगे। उसने वो एक गाने के लिए उसको 50,000 रुपीज दिया वहां पर। सोचो कितना बड़ा पागल रहेगा वो, कि उसको वो गाना वैसा ही चाहिए था। सी द सीरियसनेस एंड सी द रियलिटी, सी द perfectionism, see how perfect he was, perfect चाहिए, no compromise, compromise करूंगा ही नहीं मैं। how serious are you with your English, tell me, आप आपके इंग्लिश के साथ में कितना सीरियस है? उसने वहां पे डाला पैसा के गाना तो आप ही गाएंगे, गाना तो आप ही गाएंगे। सीरियसनेस माय फ्रेंड, सीरियसनेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ और भी बताना चाहता हूं मैं, लास्ट वाज देयर, उसके अंदर मूवी के अंदर जोधाबाई, अकबर की वाइफ जोधाबाई दिखाई है वहां पर। जोधाबाई लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति, आइडल है, नौजबिल्ला। दैट्स व्हाट, कृष्णा की मूर्ति को झूला दे रही है, कौन, जोधाबाई। आप आपको मालूम है कृष्णा की मूर्ति सोने की थी वो जमाने में, अकबर बादशाह के जमाने में। तो यहां पर के आसिफ ने क्या किया कि जो मूर्ति थी, जो आइडल था कृष्णा का, उसने वो प्योर गोल्ड का बनवाया उधर, ही मेड इट विथ प्योर गोल्ड। वाई, बोले अगर जोधाबाई अगर नकली वाले कृष्ण मूर्ति को अगर झूला देगी जी का, उसने
कृष्णा की मूर्ति बनाया ओरिजिनल प्योर गोल्ड की. डू यू नो व्हाई? जस्ट फॉर द फील, जस्ट फॉर द फील, रियल फील के लिए, जस्ट फॉर द रियल फील, रियल फील के लिए उसने क्या किया, क्योंकि अगर जोधाबाई अगर वो ओरिजिनल वाले को अगर झूला दे रही है तो उसको फील आएगा अंदर से, ओ माय गॉड 15 किलो का कृष्णा का मूर्ति रखा है झूले के अंदर, ओ माय गॉड. फील कैसा आएगा अंदर से? सेम कैसे अगर मैं अगर आप लोग के अगर हाथ में अगर दूंगा एक फोन, चाइना का फोन, और आपको बोलूंगा प्लीज प्रिटेंड इट लाइक एप्पल, आप इसको एप्पल समझो, आप लोग चाहकर भी अंदर से उसको एक्टिंग तो करेंगे, पर अंदर से क्या आएगा कि यार चाइना का फोन है. और अगर आपके हाथ में अगर ओरिजिनल एप्पल का फोन दूंगा मैं, तो आपको बोलूंगा सी दिस इज व्हाट आईफोन 12 प्रो, जस्ट टेक इट एंड फील इट लाइक. तो आप लोग उसको चाहकर भी ना चाइना नहीं समझेंगे, आप उसको बोलेंगे ओ माय गॉड आईफोन 12 इन माय हैंड, ओ माय गॉड. वो फील कैसा आएगा आप लोगों को अंदर से? आएगा कि नहीं? देयर रियल फील, यू विल फील देयर, अरे हाँ यार मेरे हाथ में आईफोन 12 है, आई हैव आईफोन 12 इन माय हैंड, वो रियल फील आएगा आपको. एंड डू यू नो वन मोर थिंग, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे अमेजिंग बात मैं आपको लास्ट वाला ये स्टोरी का बताता हूँ. सीरियसनेस एंड सी द रियलिटी. वो जमाने के अंदर वहां पे जातिवाद नहीं था. वो जमाने के अंदर लोग कितने अच्छे थे. आपको मालूम है शूटिंग खत्म होने के बाद में के आसिफ ने बोला, जो डायरेक्टर था के आसिफ ने बोला कि कृष्णा की मूर्ति जो अपन ने गोल्ड की बनाए थे, शूटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अभी अपन ये मूर्ति को पिघला कर उसका सोना लेंगे, उसको बेच देंगे, उसका सोना पिघला के मेल्ट करके उसको बेच देंगे. नौशाद साहब, नौशाद साहब जो थे उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला नहीं, बोले भगवान का मूर्ति है ना ये, कृष्णा का सोने का है, बोले नहीं पिघलाएंगे. नौशाद साहब मुस्लिम थे, ध्यान दीजिए प्लीज, नौशाद साहब मुस्लिम थे. वो टाइम पे लोग कितने अच्छे थे, लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते थे, कितने अच्छे लोग थे. नौशाद साहब मुस्लिम थे. नौशाद साहब ने कृष्णा का मूर्ति लिया, वो बोले कि ये मूर्ति मेरे, till his last breath he was, his last breath he was swinging दिया कृष्णा की मूर्ति को. समझा? दिस इज कॉल्ड सीरियस आइडिया फ्रेंड्स. हाउस इन 44 टू 1960 तक के चला. एक और चीज आपको लास्ट इसका बताऊं, हेलो Yes, हेलो, sir. या आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. Your voice is so much lagging, sir. So we हाँ I'm just सर, वो आप बोलो ना कृष्णा की मूर्ति how Krishna वो dialogue. क्या क्या आसिफ ने क्या किए, हाँ वो हाँ, सुने नहीं आए. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ वापस से. सो कृष्णा का मूर्ति जो था गोल्ड का बनाया था, राइट,
प्योर गोल्ड का बनाया था। आपने सुना था वो मैंने जो बोला अभी यहाँ पर आपको? हेलो? या सर या प्योर गोल्ड का कृष्णा का मूर्ति बनाया था ताकि जोधाबाई जो उसके अंदर झूला दे रही है, अकबर की वाइफ जोधाबाई जो थी वो झूला दे रही है उसके अंदर, तो वो रियल फील आने के लिए उसने कृष्णा का मूर्ति प्योर गोल्ड का बनाया किया आसिफ ने, ताकि वो फील आए। जोधाबाई जब उसको धक्का देगी, उसको जब झूला देगी, तो वो टाइम पे उनको फील आना चाहिए, ओ माय गॉड प्योर कृष्णा गोल्ड का बना हुआ है जिसको मैं झूला दे रही हूँ, तो उनको फील आएगा अंदर से। वो फील आने के लिए उसने प्योर गोल्ड का बनाया था वो कृष्णा का आइडल। और आपको पता है लास्ट में क्या हुआ? जब कृष्णा का आइडल जो था, शूटिंग हो गया पूरा खत्म, सब कुछ खत्म हो गया था, तो वहां पर कृष्णा का मूर्ति जो था, के आसिफ ने बोला कि अभी ये मूर्ति को हम लोग क्या करते हैं, कृष्णा का मेल्ट करते हैं और उसको बेच देंगे, अपना तो काम हो गया ना, अभी अपना शूटिंग हो गया, सब खत्म हो गया। तो वहां पे नौशाद साहब थे जो कंपोजर थे, नौशाद साहब मुस्लिम थे। देखो वो टाइम पे मुस्लिम हिंदू वगैरह कुछ नहीं था, सब लोग एक समान थे। आज लोगों ने सबने पागलपना भर के रख दिया दिमाग में अपने अपने। नौशाद साहब मुस्लिम थे, नौशाद साहब बोले अरे नहीं, बोले ये कृष्णा लॉर्ड का क्या है, मूर्ति है, इसको मैं मेरे घर लेकर जाता हूँ, इसको आप मेल्ट मत करो, मैं इसको मेरे घर लेकर जाता हूँ बिल्ला, आप इसको मेल्ट मत करो। और वहां पे नौशाद साहब ने क्या किया, उनके लास्ट ब्रेथ तक के ही वाज स्विंगिंग कृष्णा लॉर्ड विथ हिज ओन क्रेडल, नौजबिल्ला। उन्होंने क्या किया, कृष्णा की मूर्ति को उनके लास्ट ब्रेथ तक के वो झूला देते रहे। कौन? नौशाद साहब जो कि कंपोजर थे। तो सीरियसनेस, हाउ सीरियस आर यू फॉर योर इंग्लिश, टेल मी, दिस इज व्हाट सीरियसनेस। क्या आपको एक और लास्ट बात बताऊं इसके बारे में? यस सर जब ये मूवी रिलीज हुआ 1960 के अंदर, पे अटेंशन, 1944 से 1960 तक के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत लंबा टाइम था, 16 इयर्स। आज आपको मालूम है कि कल क्या होने वाला है, पर के आसिफ ने दाव खेला, कल मैं रहूं ना रहूं पर मेरा नाम तो रहेगा। आज अपन उसका नाम निकाल रहे हैं। 16 इयर्स तक के वो शूटिंग चलता रहा, 16 इयर्स तक के। और जब 1960 के अंदर जब वो मूवी रिलीज हुआ इन मराठा मंदिर, बॉम्बे मराठा मंदिर के अंदर, जब 1960 के अंदर मूवी रिलीज हुआ, आपको मालूम है मराठा मंदिर में क्या हुआ था? ये वहां का टॉप ये था क्या, थिएटर, मराठा मंदिर इन मुंबई। सो जब 1960 में मराठा मंदिर में रिलीज हो रहा था मूवी, तो मराठा मंदिर जो ये था थिएटर, उसका 1100 कैपेसिटी था ऑडियंस का। कितना था? 1100 कैपेसिटी था ऑडियंस का। और उस थिएटर के बाहर उस दिन फ्राइडे के दिन जब रिलीज हुआ सर वो, आपने 1100 लिखा है, या 1100 ही था ना, मैंने कहा मना किया। 1100, 1100 होता 11,000 ना, 1000 नहीं, अच्छा 1100 1100 उसका क्या था, कैपेसिटी था। और मराठा मंदिर के आगे पब्लिक खड़ी हुई थी 1 लाख, 1 लाख लोग खड़े थे वहां पर बाहर मूवी देखने के लिए, और उसका कैपेसिटी था ओनली 1100। क्यों पता है क्यों खड़े थे वो लोग? पता है क्यों जमा हुई थी पब्लिक इतनी? बिकॉज जब वो मूवी रिलीज हुई तो के आसिफ ने उसका जो प्रिंट था मूवी का, आजकल तो क्या सीडी पेनड्राइव में चलता है, वो टाइम पे प्रिंट आता था, तो उसने 4 एलिफेंट्स के ऊपर वो प्रिंट मंगाया था। हाउ मेनी? 4 एलिफेंट्स के ऊपर वो मूवी का प्रिंट मंगाया था। मूवी प्रिंट जो था, कितने लोगों, कितने एलिफेंट्स पर आया था वो जाकर? 4 प्रिंट्स, सॉरी 4 एलिफेंट्स के ऊपर वो मूवी प्रिंट आया था रख के। तो जब लोगों ने देखा, ओ माय गॉड इतना बड़ा प्रिंट, इतने सारे एनिमल्स लग रहे हैं उसके लिए, मतलब मूवी में कुछ तो है, मतलब मूवी कुछ तो बहुत बाहरी है, कुछ तो मूवी के अंदर बहुत सीरियसली काम किया गया है। और इसकी वजह से वहां पर लोग कितने जमा थे? 1 लाख पीपल वर देयर, 1 लाख लोग थे वहां पर। कैपेसिटी कितना है थिएटर का? ओनली 1100। और लोग कितने जमा थे? 1 लाख। दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस। हाउ सीरियस आर यू फॉर योर इंग्लिश? आप कितने सीरियस हैं आपके इंग्लिश के लिए? टेल मी। समझा? सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मुगले आजम। ये स्टोरी था मुगले आजम मूवी का। सोचो अपन कहाँ है, कितना सीरियस, कितना पागल रहेगा डायरेक्टर वो, कि जिसने एक एक काम को उसने इतना सीरियसली लिया, एक एक काम को उसने इतना सीरियसली लिया। और आपको पता है उसके अंदर कुछ सीन ऐसे हैं जिसको उसने 5-5 6-6 कैमरे से शूट किया है उसको।
5-5 6-6 कैमरे से शूट किया है, अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से। और एक और बात आपको मालूम है, के आसिफ वांटेड टू मेक दिस मूवी इन फुल कलर, कलर के अंदर वो मूवी को बनाना चाहता था, बट नहीं बना पाया। ओनली वन सॉन्ग ही शॉट इन कलर, और वो सॉन्ग है प्यार किया तो डरना क्या। सिर्फ एक सॉन्ग जो था वो कलरफुल था उसका, वो पूरी मूवी कलर में बनाना चाहता था। वो टाइम पे कलर में मूवी नहीं आता था, ब्लैक एंड व्हाइट आता था। बट प्रोड्यूसर ने क्या किया, पैसा ही नहीं दिया उसको। प्रोड्यूसर बोला मेरे पास पैसे वैसे नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ पैसा और बाकी का, वरना पूरा मूवी कलर में शूट मारने वाला था वो, क्योंकि इतना पैसा खर्चा हो गया था कि प्रोड्यूसर भी नंगा हो गया था उधर। के आसिफ के पास तो बीड़ी पान खाने का भी पैसा नहीं था, उधार पीता था वो। आज के आसिफ को लोग याद करेंगे कि नहीं? यस। आप यूट्यूब पर जाकर देखो, आपको उसका पूरा स्टोरी मिलेगा वहां पर। जो मैंने स्टोरी आपको बोला हूँ, आपको ये स्टोरी भी शायद किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा आपको वहां पर। सो के आसिफ वाज द पर्सन हु created one movie which was mind blowing and created the history. Getting it? This is called seriousness, my dear friend. How serious are you for your English? Tell me. एक मूवी बना रहा है, उसके लिए 16 साल लगाया उसने। कितना? 16 साल। और अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, कहीं पर भी अगर जाते हैं, अगर किसी को बोलेंगे कल मेरा संडे को फ्री डेमो है, आप लोग आओ प्लीज, तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं ऐसा, फ्री में आप लोग कुछ देंगे? समोसा मिलेगा खाने को, कोल्ड ड्रिंक देंगे आप लोग पीने के लिए, आप लोग फी आधे से आधा कम करेंगे, आप लोग आपका हमारे को पूरा सीक्रेट देंगे, आपको हमारा पूरा ईमेल आईडी विद पासवर्ड देंगे। कितने भिखारी सोच वाले लोग रहते हैं, सॉरी टू से दिस। आते सबसे पहले एक ही सवाल करते हैं, सबसे पहले आकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच इज द फी? फी कितना है? अरे पढ़ने के लिए क्या फी? क्या फी पढ़ने के लिए? क्या पढ़ने के लिए क्या फी? नथिंग। इट इज नथिंग। फी इज नथिंग। लर्न, आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा इट इज प्राइसलेस। अब मैं आपको एक और चीज लास्ट दिखाना चाहता हूं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि व्हाट इज सीरियसनेस माय डियर फ्रेंड्स। मैं किसके ऊपर बिलीव करता हूं, देखो जो मैं बिलीव करता हूं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं अभी। आई एबल टू सी माई स्क्रीन? मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। क्या लिखा है यहाँ पर? खूप सारे ध्येय प्राप्त करायचे एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे जिद्द. मैं भी जिद्दी हूँ, बहुत बड़ा जिद्दी हूँ मैं भी। अगर आप लोगों को अगर कोई चीज प्राप्त करना है, अगर आप लोगों को कोई चीज अगर चाहिए, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? जिद। अच्छी जिद, हम गंदी जिद नहीं, अच्छी जिद। जिद करो और आप लोग को चीज मिल जाएगा, जिद करो और आप लोग को वो चीज मिल जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई बिलीव। मैं बिलीव करता हूँ इसके ऊपर, और मैं जिद करता हूँ अच्छी चीज के लिए। मैं हमेशा जिद करता हूँ अच्छी चीज के लिए। सो हाउ सीरियस आर यू फॉर योर इंग्लिश? टेल मी, हाउ सीरियस आर यू फॉर योर इंग्लिश? आप कितने सीरियस हैं? मैंने ये इसके अंदर सीरियसनेस का बहुत बार नाम निकाला हूँ, क्योंकि पूरा स्टोरी किसके ऊपर है? सीरियसनेस के ऊपर। आप Seriousness. कितने सीरियस हैं? आप कितना सीरियस हैं आपके इंग्लिश को लेकर? आप कितना सीरियस हैं आपके इंग्लिश को लेकर? आप कितना सीरियस हैं आपके काम को लेकर? सो दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ सीरियसनेस। पूरा स्टोरी किसके ऊपर है? सीरियसनेस के ऊपर है। गेटिंग इट? एनी डाउट्स? क्या आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा? यस सर. सीखने को मिला स्टोरी से? स्टोरी नहीं था, एक्चुअली ओरिजिनल इंसिडेंट था वो। सो आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा रहेगा। चाहिए तो इसका रिकॉर्डिंग आप लोग जाकर देखना, और आपको एक और बार कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा वहां से। गेटिंग इट? Yes, sir. चलो, नाउ आई वांट यू टू मेक सेंटेंसेस वंस अगेन। मेक सेंटेंसेस विद दीज एडजेक्टिव्स। जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाइए प्लीज इसके साथ में। आई वांट यू टू मेक सेंटेंसेस। कल हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, प्लीज डोंट बी एब्सेंट। उद्या आपला एक नवीन टॉपिक स्टार्ट होणार आहे, ऍबसेंट राहायचं नाही। जर आपण ऍबसेंट राहिलो तर आपण लटकशील। ओके, चलो भाई कंटिन्यू। यस, मोबाईल काय करा
Yes, continue please. Make sentences with these adjectives. Nowadays, children are tremendously studious. Very good. He is Very good. gradually increasing his performance. Very good. Yes. The car is total wrong side in park. Very good. आज जो मैंने स्टोरी बोला हूँ वो स्टोरी को फील करना, ठीक है, और वो स्टोरी के बारे में सोचना कि वो कितना सीरियस है और अपन कितने सीरियस है. कंटिन्यू. The students are extraordinarily curious. वेरी गुड. यस. यस. The dog is awfully angry. वेरी गुड. He यस. is extraordinarily reputed person. Very good. He's extraordinarily reputed person. She's completely upset by my acts. Yes. He's entirely useless. The product is entirely pathetic. Yes, continue. The product is amazingly good. Very good. She's awfully moralful. The story is completely moralful. Yes. I am completely satisfied with He was unbelievably Very good. curious about new project. Very good. She is wholly talented in this stuff. The idea is entirely inappropriate. Yes. Yes. Yes, continue please. Grant card. Yes. The story is unbelievably amazing. The story is unbelievably amazing. Good. Throughout is exaggerated. Good. Grant Cardone is really good person. Good. Sir, what is exaggerated? Exaggerated means what? बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, जबरदस्ती का फेंकते हैं. For example, I can bring you the stars. अतः can we bring stars? No. So that's what exaggerated. Yes. The boy is highly depressed today. Very good. Yes. The story is perfectly beneficial. Correct. Very good. The movie was completely exaggerating. The movie was completely exaggerating. Good. His behavior was entirely ridiculous. The She product is not unusually upset. unbelievable. Very good. The abusers were immensely annoying. Yes. Yes, continue. I am tremendously satisfied with your products. Yes. She's The product is impatiently really
Yes, ma'am. The product is really useless. Good. Very He is good. incredibly happy with his job. Very good. Incredibly happy with the job. Taj Mahal is incredibly beautiful. She was heavily depressed. Your project is perfectly beautiful. Yes, I'm enormously grateful to have your acquaintance. Good to make sentences, don't be quiet. Yes, sir. Continue. He is deeply saddened by the news. Very good. Yes. Continue, please. He is enormously waiting for the chance. Very good. He's enormously waiting for the chance. The boy is totally unaware for these incidents. Very good. Yes. He is impatiently waiting for his new car. Very good. Yes. I am really expected for the result. Very good. Nice sentence, huh, Shivdas? He's impatiently waiting for his car, new car. The car is severely damaged in the accident. You are utterly perfect for the job. She is exceptionally wrong in this debate. I was particularly agreed for the concept. You are awfully successful in this industry. They are really populated countries. They are tremendously sure about the new product. Very nice. They are tremendously sure about the new products. I am impatiently to Dev sir come to my home. I'm impatiently waiting for Devsar's appearance. I am impatiently waiting to sir appearance. Good. Yes. Yes. Continue. This is Continue, totally please. crowded area. Very good. The weather is unbelievably changed. Remarkably. Means what remark कर सकते हम लोग इसका ऐसा. The changes are remarkably awesome. The changes are in your results are remarkably awesome. KSF was really serious in making the movie Mughal Azam. Correct. K. Asif was really serious in making movie Mughal Azam. Good. They were terribly injured by the car accident. Very good. They were terribly injured by the car accident. Yes. 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 Anything else, please? She is bitterly satisfied with my proposal. He was particularly looking for that opportunity. Very good. He was particularly looking for the opportunity. Particularly looking. Verb के साथ में बनाया है. Good. The idea is highly challenging.
The Phantom was unbelievably horrible. I'm entirely delighted by your performance. Entirely delighted. She beautifully escaped from the ground. Beautifully escaped from the ground. This is incredibly powerful gadget. Very good. It is incredibly powerful gadget. Yes, The prediction was absolutely correct. correct. Yes. Yes. Anything else? Your complaints are unbearably awful. Yes. I'm totally unaware of new lockdown. Guddu sleeping. They are thoroughly waiting for the holidays. They are thoroughly waiting for the holidays. Nice. Yes. Ma'am, have they finished the lockdown in USA? No, sir. Not yet. No, sir. Oh my god. That is that is for unlimited period, sir. Now. Oh my god. My god. But it is really very bad side, huh, ma'am? But it is very sad side of this lockdown. This means what? Okay, where does he live? In the USA? Your brother? He is in Seattle, sir. Okay, Seattle. Seattle. Bill Gates' house is in Seattle. Yeah, sir. Correct. Bill Gates' house is in Seattle. Sir. Nice. Bill Gates It's a also very lives nice in. place. Yeah, It's yeah, a it very is. nice place. It's a beautiful place, ma'am. There are many lakes. Yes, sir. Correct. It's a beautiful place. Bill Gates live in Seattle. Yes, continue. He is an extraordinarily intelligent boy. Correct. He's an extraordinarily intelligent boy. Yes. Any doubts to anyone with this? Yes. Anyone would like to say anything regarding this? It was really very important topic. That's why I have given you the story today of Mughal Azam, of very seriousness. So I want you to be very serious now because tomorrow I'm going to start your new topic. Okay? We have done with our capitalization, we have done with our signature, we have done with our intensifiers as well. Tomorrow I'm going to start your new topic, and the new topic will be about. We have done our intensifiers. Okay, you tell me, shall I take heavy topic or shall I take light topic tomorrow? Light topic, sir. Guddu is saying always a light topic, light topic. I'm No really sir, already. because tomorrow my paper is online, तो उसका टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा फिर उसके बाद. तुमच्यासाठी काय पण खुश. हाँ. Okay, tomorrow I will take a very light topic, and the topic is determiners. Okay, Okay. tomorrow I will take a very light topic, and the very light topic is what? Determiners. So please, nobody will be absent. All right, ma'am. All right, Shivdas. All right, Guddu. Okay. So I want all of you tomorrow here present on time, and we are going to have a new topic, determiners, in detail. Okay, how many determiners are there and how we are going to handle them, how are you going to make sentences with them, we are going to see each and everything in detail. We'll see you tomorrow. Till that, take care, and please try to practice at home and keep on watching the recordings as well. Okay, Okay. see Cheerio, you. sir. Thank you. Sir, Yes, sir. Goodbye.